नमस्ते दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी का स्वागत है समर्थ कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड्स इंग्लिश पोएम, इंग्लिश का पोएम फ्रॉम यूनिट 1 1.3, पोएम नंबर 1.3, हैव यू एवर सीन। सो दिस पोएट्री और दिस पोएम इज रिटन बाय whom? The poet's name is not mentioned here. Instead of that, what is used? The word enormous is used. Enormous means what, children? Enormous means a person or somebody whose name is not known. Okay, yes. So first we'll read out the poem and then we'll try to understand what is written in the poem. What is written in the poetry? Yes. So we'll start reading first. Have you ever seen a sheet on a riverbed, or a single hair from a hammer's head? Has the foot of a mountain any toes? And is there a pair of garden hose? Does the needle ever wink its eye? Why doesn't the wing of a building fly? Can you tickle the ribs of a parasol, or open a trunk of a tree at all? Are the teeth of a rake ever going to bite? Have the hands of a clock any left or right? Can the garden plot be deep and dark? And what is the sound of the beast's bark? Okay, so yes. So let's understand now. Have you ever seen a sheet on a river bed? So do you know what is a river bed? Don't worry, I'll show you the picture on the screen. What is a river bed? So you can underline river bed and write there, river bed means what? Where the river flows. That is a river bed. River bed मतलब क्या होता है बच्चों? Where the river flows. Okay, I'll show you the picture on the screen. Yes. So have you ever seen a sheet on a riverbed, or a single hair from a hammer's head? Hammer's head means what? You can underline and write. Hammer's head मतलब क्या होता है? Head of the hammer. Hammer का जो head होता है. Okay, head of the hammer. Hammer means what, you know? हथौड़ी जिसे हम बोलते हैं मराठी या हिंदी में. Yes, हथौड़ी, हथौड़ा. Okay, that उसका जो टॉप का जो पोर्शन होता है, that is the head of the hammer. I'll show you the picture on the screen. Okay, so yes, now let's understand. Have you ever seen a sheet on a river bed? Okay, now आप यहाँ पे फोकस कीजिए. पे अटेंशन प्लीज. सभी बच्चों प्लीज पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, जैसे घर पे बेड होता है. यस, एट होम वी हैव अ बेड एंड ऑन दैट बेड वी पुट अ बेड शीट. करेक्ट. हमारे घर पे बेड होता है तो हम बेड के ऊपर क्या डालते हैं? बेड के ऊपर बेड शीट डाली जाती है ना. हम बेड के ऊपर बेड शीट डालते हैं. तो वैसे जो पोएट है, पोएट हमें क्या बोल रही है या क्या क्या बोल रहे हैं? पोएट क्या बोल रहे हैं हमें? वो पूछ रहे. The poet is asking us a question. The poet is asking question, but the poet is not expecting we to answer. Okay, just वो question पूछ रहे हैं हमसे. क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम घर में बेड होता है उस पर हम बेड शीट डालते हैं, तो क्या हम रिवर का भी बेड होता है, रिवर बेड. यस, जहाँ से रिवर फ्लो होती है, जहाँ पे रिवर फ्लो होती है, फ्रॉम वेयर द रिवर फ्लोज. ओके, वेयर द रिवर फ्लोज इज अ रिवर बेड. तो क्या हम उस पर भी बेडशीट डाल सकते हैं? रिवर बेड पे भी हम बेडशीट डाल सकते हैं, शीट डाल सकते हैं. यस, यस. सो और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड. तो जैसे वी ऑल्सो हैव अ हेड, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैव अ हेड, है ना. सो हेड के ऊपर हमें हेयर्स होते हैं, तो हैमर को भी हेड है ना. तो हैमर के हेड के ऊपर भी हेयर्स होते हैं क्या? द पोएट इज आस्किंग अस. सो डेफिनेटली शी इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग अस टू आंसर, बट यूल ऑफकोर्स आप लोग आंसर मन ही मन में आप लोग आंसर कर रहे होंगे कि नो. करेक्ट. यस. सो नाउ we'll read the next line. Has the foot of a mountain any toes? Has the foot of a mountain any toes?
तो जैसे हमें फुट होता है, करेक्ट, तो माउंटेन को भी फुट होता है. फुट मीन्स, माउंटेन का फुट मीन्स क्या? The lower part of the mountain, that is called the foot of the mountain. Okay, you can underline foot of the mountain means the lower part of the mountain is known as foot of the mountain. I'll show you the picture on the screen. Okay, so has the foot of a mountain any toes? तो जैसे ह्यूमन बीइंग को yes toes होते हैं, हमें जैसे toes होते हैं, है ना, हमें foot है तो has the foot of a mountain any toes? तो क्या माउंटेन को भी टोज होते हैं? यस, फुट, माउंटेन को फुट है तो क्या उसे टोज भी होते हैं? माउंटेन को टोज भी होते हैं, जैसे हमें फुट है तो टोज भी है. सो क्या माउंटेन को होते हैं? एंड इज देयर अ पेयर ऑफ अ गार्डन होज? गार्डन होज मीन्स व्हाट हियर बच्चों? मीन्स a pipe which helps to water the plant. Okay, garden hose means a pipe which helps to water the plants. Okay, or else you can also say कि इसका meaning और होता है hose. Hose also means a pair of socks here. Okay, so जैसे हम socks हो, correct, या फिर stockings हो, उसका हमेशा पेयर होता है, करेक्ट. क्या एक सॉक्स बेचते हैं दुकान वाले? क्या दुकान में हमें सिर्फ एक सॉक्स मिलता है या एक स्टॉकिंग्स मिलते हैं? नहीं, वी हैव टू टेक द पेयर में मिलते हैं हमेशा. तो जैसे उसका पेयर होता है, तो क्या जो गार्डन होज होता है, पाइप, यस, विच हेल्प्स टू वाटर द प्लांट्स, क्या उसका भी पेयर होता है? नो, है ना. यस, सो डज द नीडल एवर विंक इट्स आई? सो वी हैव अ आई that we can wink, है ना. we have a eye, human beings have eye which we can wink, correct. तो नीडल का जो टॉप पोर्शन होता है, where we put the thread, correct, that is called as the needle's eye. you can underline needle's eye मतलब क्या, you can write it down. needle's eye means नीडल का जो टॉप पोर्शन होता है जिसमें हम थ्रेड डालते हैं, थ्रेड को घुसाते हैं या थ्रेड डालते हैं, that is known as the needle's eye. I'll show you the picture on the screen. Okay, so don't worry. So does the needle ever wink its eye? तो जैसे हमें आई होता है तो हम आई से विंक कर सकते हैं, तो नीडल को भी आई है. सो कैन द नीडल विंक इट्स आई? यस, नो. सो why doesn't the wing of a building fly? Wing means, you know, the sections made to recognize particular buildings, or we can say विंग मतलब जो सेक्शंस किए जाते हैं बिल्डिंग को. यस, वी से ना, ए विंग है, ये बी विंग है, ये सी विंग है, ये डी विंग है. सो बिल्डिंग्स में विंग होते हैं. यस, और बर्ड्स को भी क्या होता है? बर्ड्स के विंग्स भी होते हैं, है ना. बर्ड्स को भी विंग्स होते हैं. सो जैसे बर्ड्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, कैन अ बिल्डिंग फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द विंग? यस. व्हाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई? यस, द पोएट इज आस्किंग कि जैसे बर्ड्स फ्लाई कर सकते, तो कैन अ बिल्डिंग फ्लाई? नो. Okay, so can you tickle the ribs of a parasol? Parasol here means, yes, parasol means umbrella. You can see the meaning is given here. Parasol means umbrella. So जैसे ribs होते हैं, I'll show you the picture of the ribs also on the screen. Okay, can you tickle the ribs of a parasol? So जैसे हमारे जो ribs होते हैं, yes, that we can tickle. tickle मतलब गुदगुदी करना, तो हमें गुदगुदी हो सकती है. बट पैरासोल मीन्स अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के भी रिब्स होते हैं. दैट ऑल्सो आई शो द पिक्चर ऑफ दैट. ओके, ऑन द स्क्रीन आई शो यू द पिक्चर. तो अम्ब्रेला के भी रिब्स होते हैं, तो क्या हम उसे गुदगुदी कर सकते हैं? हम गुदगुदी कर सकते हैं, बट क्या उसे गुदगुदी होगी? Can the umbrella feel ticklish? No. Or open the trunk of a tree at all. You know, trunk means what? Trunk means what? In a case of a tree, trunk means main part of the tree from which branches grow. Yes, what is the trunk of a tree? Trunk of a tree means tree का trunk जो होता है, that is the main part of the tree from which the branches grow. I'll show you that picture also on
screen. Yes. So एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू वन मोर थिंग दैट इंग्लिश में जैसे हर वर्ड का जो मीनिंग है, वर्ड के मीनिंग्स अलग अलग होते हैं इन इंग्लिश. वन वर्ड हैज़ मैनी मीनिंग्स, वन वर्ड कैन हैव डबल मीनिंग ऑल्सो. यस, मैनी मीनिंग्स, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश में. सो ऐसे वर्ड्स जो है यहाँ पे पोएट ने ये पोएम में ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जिसके एक मीनिंग नहीं है, जिसका एक मीनिंग नहीं है, जिसके डबल डबल मीनिंग्स है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे ट्रंक मतलब इन अ केस ऑफ ट्री द मेन पार्ट फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो. एंड और एक ट्रंक होता है वेयर वी कैन, इट इज़ लाइक बॉक्स टाइप होता है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं चीज़ें, वेयर वी कैन स्टोर द थिंग्स. यस, ओके. सो जैसे हम जो दूसरा ट्रंक है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं थिंग्स. यस, तो क्या हम ट्री का जो ट्रंक होता है उसमें भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं? कैन वी स्टोर द थिंग्स इन ट्रीज ट्रंक? Definitely no. You'll get the answer no. So now let's read the next line. Are the teeth of a rake ever going to bite? Are the teeth of a rake ever going to bite? So जैसे हमारे जो teeth होते हैं, yes, with the help of that we have a rake of teeth. Yes, with the help of that we can bite. तो यहाँ पे again we have double meaning of a word. Rake means which is used to clean a garden. Okay, rake means यहाँ पे दूसरा rake का meaning क्या है? Which is used a tool which is used to clean a garden. Okay, rake means a tool which is used to clean a garden. I'll show you the picture of that also on the screen. Okay, even rake has a teeth. Yes, can we bite through that teeth? सो जो गार्डन का जो टूल होता है उसे भी ऐसे पॉइंटेड शार्प ऐसे टीथ जैसा स्ट्रक्चर होता है आगे. यस, तो क्या हम उससे बाइट कर सकते हैं? नो. हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के दो हाथ होते हैं, करेक्ट, लेफ्ट और राइट, और हम उसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये लेफ्ट है ये राइट है. तो क्लॉक को भी दो हैंड्स होते हैं, लेफ्ट क्लॉक को भी दो हैंड्स होते हैं, करेक्ट. तो क्या हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लेफ्ट हैंड है कौन सा राइट हैंड है? द पोएट इज आस्किंग अस अ क्वेश्चन, हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं ये लेफ्ट वाला है ये राइट वाला है? नो. ओके, सो कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? सो हियर अगेन गार्डन प्लॉट कैन, गार्डन प्लॉट को जो है दो मीनिंग्स लिए गए हैं यहाँ पे. गार्डन प्लॉट के दो मीनिंग्स हैं यहाँ पे. यू नो गार्डन प्लॉट मीन्स, सो गार्डन प्लॉट के यहाँ पे दो मीनिंग्स हैं. तो क्या मीनिंग है कि एक गार्डन प्लॉट मीन्स जैसे मूवी में एक प्लॉट मीन्स स्टोरी, इट कैन बी डीप डार्क, है ना, इट कैन हैव प्लानिंग, इट कैन हैव इमोशंस. वैसे ही दूसरा गार्डन प्लॉट मीन्स व्हाट, यू नो एक पूरा ऐसे गार्डन जैसे पूरा एक एरिया है ना, एक प्लॉट. ओके, एक सिंपल प्लॉट. तो इसके दो मीनिंग्स है. एक सिंपल प्लॉट, प्लॉट आपको पता है एक जगह ऐसे गार्डन जैसा एक एरिया, एक सिंपल प्लॉट यू कैन से. और दूसरा जैसे कि एक स्टोरी, एक मूवी में एक स्टोरी में इट कैन हैव डीप डार्क, है ना, इट कैन हैव प्लानिंग इमोशंस. सो क्या ये जो प्लॉट है गार्डन वाला जो प्लॉट है कैन इट बी डीप एंड डार्क? मूवी में जो मूवी में या फिर स्टोरी में, करेक्ट, जो प्लॉट होते हैं उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें प्लानिंग्स होते हैं, करेक्ट. तो क्या गार्डन प्लॉट में भी वैसा हो सकता है, डीप एंड डार्क है? कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? डू इट हैव इमोशंस? डू इट हैव एनी प्लानिंग? नो. एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द birch bark? Now what is a birch? Birch is one kind of a tree. Okay, the outer cover of birch tree, when it shells it is called the birch bark. I'll repeat, birch is a one kind of tree. Birch is a one kind of tree, and birch bark means what? When the tree it shells, okay, the outer cover of the tree, when it shells it is called the birch bark.
Okay, so if dog bark, yes, dog can bark, you know the barking sound of a dog. The sound of a dog is known as barking. Yes, कुत्ते का भौंकना. So जैसे कुत्ता भौंक सकता है, a dog can bark. Can this also bark? Can a bitch can if dogs can bark, can bitch also bark like a dog? No, it cannot.